So according to the conductivity basis that we are going to differentiate here, that is the different types of the solids. So that the solids according to their conductivity. Now what is the conductivity? कौन से types होते हैं? Conductivity के अनुसार हम लोग यहाँ पे differentiate करने की कोशिश करेंगे. So as far as the conductivity is concerned, the conductivity का मतलब ही होगा it is the flow of the electron or it is the flow of the current. When there is a flow of electricity or when there is a flow of current, electron का flow हो या तो current का flow हो, that a term that is to be related with the conductivity. So on the basis of the conductivity, there are the three different types of the solids we are going to take. The first is known as the conductor, second that is known as the insulator, and the third that is known as the semiconductor. So that these are solid basically that is to be classified into the three category. One is conductor, second is the insulator, and the third is the semiconductor. Now we are taking here that is the one by one. Say what is the concept of the conductor? Conductor की अगर बात अगर करें तो everybody that knows that the metals are the good conductors of the electricity. अगर ये statement अगर कहा जाता है इसका मतलब ही होगा कि that say that the large amount of the current that will flow easily through this, then they are known as the conductor. Examples are there, that is the copper, aluminium, any metal, say that silver, iron, etc. All these are the metals where this shows the conductivity, where there is a flow of the electron that very easily the electron that moves, and that's why they are known as the conductors. Then the second type is there, that is the insulator, where these insulator do not allow to flow the electrons. वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट erases the flow. वहां पे होता ही नहीं, फ्लो ही नहीं होता, तो वहां पे कंडक्टिविटी नहीं होगी. एग्जाम्पल के तौर पे जाए तो जहां से दैट वुड, रबर, सल्फर, फॉस्फोरस, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर. दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इसका मतलब ये होगा विच डू नॉट फ्लो द इलेक्ट्रॉन. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ सेमीकंडक्टर. अगर यहां पे अगर कंडक्टिविटी की अगर बात होती है तो कंडक्टिविटी दैट लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड से इंसुलेटर. यहां पे कंडक्टिविटी जो फैक्टर होता है इट लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर. ये दोनों के बीच का जो होगा दैट विल नोन एज द सेमीकंडक्टर. अब सेमीकंडक्टर अगर होता है तो वहां पे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो से दैट द एग्जांपल इज द सिलिकॉन. अनदर एग्जांपल इज द जर्मेनियम. इट इज व्हाट से पी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं. सो ऑल दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो जनरली अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात अगर करें तो वहां पे आप लोगों को इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स दिखते हैं. Then these are semiconductors that are of two types. One is known as the intrinsic semiconductor and the extrinsic semiconductor. अगर हम लोग यहाँ पे semiconductor की अगर बात करें तो again that these are of two types. One is known as the intrinsic and the another that is known as the extrinsic. जहां तक intrinsic conductors की अगर बात अगर होती है तो they are known as the pure semiconductor. While the extrinsic की अगर बात अगर होती है तो they are the impure semiconductor, where these impure semiconductor again are classified into the two category. One is the p type of the semiconductor and the another is the n type of the semiconductor. Clear? अगर वो semiconductor अगर होते हैं इसका मतलब ये होगा कि as the temperature increases, अगर मैं ये temperature factor की अगर बात करता हूं, see as the temperature increases the conductivity that is also increases, and that's why we are saying that at absolute zero temperature, अगर वो absolute zero temperature अगर होगा तो at zero temperature the conductivity that is also zero. As the temperature increases the conductivity that is also increases. So these are the different types of the solids as per the conductivity. बराबर. तो पहला टाइप होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर एंड द थर्ड इज द सेमीकंडक्टर. क्लियर? समझ में आ रही है? सो दीज आर द वेरी सिंपल टाइप्स. और जहां तक सेमीकंडक्टर की बात होती है तो सेमीकंडक्टर अगेन क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी. वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जहां पे इंट्रिंसिक की बात होती है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि दैट दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर. व्हाइल द एक्सट्रिंसिक की अगर बात अगर होती है तो दैट इज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर. वहां पे इंप्योरिटी होता है, जो कि हम लोगों को पता है कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स के अंदर में हमने देखा है
कि दैट द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जिसको हम लोगों ने बोला, सी दैट दिस इज द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो these are the impurity that after adding the impurity, so that's why these are semiconductor becomes the impure. और उसके भी दो टाइप होते हैं, where the one type is known as the p type of the semiconductor and the another that is known as the n type of the semiconductor. Clear? So we come on n type of the semiconductor and the p type of the semiconductors. देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा है कि सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे इंट्रिंसिक टाइप का होता है और एक एक्सट्रिंसिक टाइप का होता है. The intrinsic type of the semiconductor that is known as the pure semiconductor and the extrinsic type of the semiconductor that is known as the impure semiconductor. अब अगर वो intrinsic type का pure semiconductor अगर होता है, it means that pure semiconductor का मतलब ये होगा कि उसमें कोई impurity नहीं है. अगर कोई impurity अगर नहीं है तो conductivity जो हो गई, क्योंकि as this is the semiconductor, conductivity ये दोनों के बीच में है, बराबर है. अब अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात अगर करें तो से इफ आई टेक हियर दैट इज द सिलिकॉन, तो कंसेप्ट क्या होता है वो भी देखें कि जो कंडक्टिविटी होती है. पहले तो हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, जहां पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब बात होती है तब हम लोग बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप की. ओके अगर वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर अगर है तो यहां पे मैंने सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर निकाला है. वैसे दैट दिस इज सिलिकॉन, जैसे कि अगर आप यहां पे अगर देखें, इट इज द 14 ग्रुप मेंबर होने के कारण अगर आप देखें तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है करके. दैट एवरी सिलिकॉन दैट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड. इस तरीके का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है. अब ये जो स्ट्रक्चर बना, अब क्यों तो हम लोगों को पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखना है, तो डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप और एन टाइप में क्या होता है वो हम लोग पहले देखेंगे. मानो अगर यहां पे ये सब सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, एज इट इज इम्प्योर, तो हम लोग यहां पे एक इंप्यूरिटी ऐड करते हैं जिसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं. इट इज अ डोपिंग. मानो मैंने यहां पे एक बोरॉन का एटम इसके अंदर में आया, बोरॉन का एटम मैंने इंप्योरिटी करके इसमें डाला है. देखो कंसेप्ट को समझने के लिए आसान कंसेप्ट जरूर है, कंफ्यूजन भी होगा. मैंने क्या बोला, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है 4 करके, उसकी टेंडेंसी है 4 बॉन्ड फॉर्म करने की. लेकिन ये इंप्योरिटी इंप्योर सेमीकंडक्टर की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होने के कारण मैंने वहां पे एक बोरॉन का इंप्योरिटी एटम इसके अंदर में डाला. सो बोरॉन दैट इज टू बी डोप्ड इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल, बराबर है. इट इज अ प्रोसेस डोपिंग, इट इज अ डोपिंग प्रोसेस. इंप्योरिटी हम लोगों ने ऐड की. कौन सी इंप्योरिटी ऐड की, बोरॉन की. लेकिन बोरॉन की इंप्योरिटी ऐड करने के बाद मुझे पता चलता है कि एज इट इज द 13th ग्रुप एलिमेंट, उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 ही होती है. उसकी वैलेंसी 3 होती है और 3 वैलेंसी होने के कारण वो 3 नेबरिंग सिलिकॉन को क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करता है. क्लियर. यानी अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले बॉन्ड था, अब बॉन्ड नहीं है. That means now this is the deficiency of the electron that will be created. That is the deficiency of the electron that is created, that is known as the positive. It is a hole. This is the one hole that is to be created over here. इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले था, लेकिन जैसे मैंने बोरॉन की इंप्योरिटी ऐड की, क्यों तो उसकी वैलेंसी 3 है तो उसने 3 बॉन्ड तो बना लिए, बराबर है. और यहां पे जो पहले इलेक्ट्रॉन था वो नहीं है. इट मींस दैट दिस दैट क्रिएट्स द होल. वहां पे एक फॉर्मेशन हुआ and that formation is the hole, and that hole
that indicates the deficiency of electron. यहां पे deficiency of electron होगी, किसके कारण हो गई भाई? बोरॉन के कारण। और ये जो deficiency जैसे होल बना, ये जो सेमीकंडक्टर अब बन गया है, इसको कहते हैं p टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्लियर? इट इज द p टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब अगर हम लोग n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट है, वही सिलिकॉन के एटम ने यहां पे लगाए हैं, ये स्ट्रक्चर नेटवर्क जिस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब यहां पे मैं इंप्यूरिटी ऐड करता हूं, कौन सी ऐड करता हूं? चलो यहां पे मैंने फास्फोरस की इंप्यूरिटी ऐड की, मैंने यहां पे फास्फोरस डाल दिया। क्लियर? अब फास्फोरस डालने के बाद फास्फोरस की वैलेंस होती है 5, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 5। सिलिकॉन की कितनी थी? 4। अब यह 4 वैलेंसी होने के कारण 4 बॉन्ड तो हो गए, लेकिन अब फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पांचवा जो इलेक्ट्रॉन होगा, दैट दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट विल बी द एक्सेस इलेक्ट्रॉन नाउ। बराबर है? क्यों? तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। उसने 4 तो शेयर कर दिए, 4 के साथ उसने बॉन्ड तो बना लिया सिलिकॉन के साथ, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं क्रिस्टल के अंदर में, यहां पे है। सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज द मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन that will free to move anywhere in the crystal lattice, and that these electron now it shows that is the electrical conductivity. Getting this? समझ में आ रहा है? ये अगर इस तरीके का अगर होता है, see this is the doping, यानी मैंने प्योर क्रिस्टल में यहां पे मैंने बोरॉन ऐड किया तो मुझे पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिला, और यहां पे मैंने फास्फोरस को ऐड कर दिया, दैट इज द 15 ग्रुप वाला एलिमेंट, यहां पे 13 ग्रुप वाला एलिमेंट हम लोगों ने ऐड किया। बराबर है? जो इफेक्ट आता है, सी दैट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट विल बी देयर, दैट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन दैट विल फ्री टू मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल लैटिस, एंड दैट्स व्हाई द कंडक्टिविटी दैट विल बी इंक्रीजेस। करेक्ट? समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर यहां पे निगेटिव होल, ये जो होल होता है, जो होल होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा इट मस्ट बी अ पॉजिटिव, क्यों? तो इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी पॉजिटिव चार्ज है, isn't it? If there will be the removal of electron, तो एक पॉजिटिव चार्ज वहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बराबर? समझ में आ रही है? सो दैट दिस होल दैट विल बी क्रिएटेड दैट विल बी द पॉजिटिव, एंड से दैट दिस इज द एक्सेस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी देयर, वेयर दिस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी फ्री टू मूव इन क्रिस्टल लैटिस, एंड देयरफॉर ये दोनों फिनोमिना, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बताता है और दूसरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है। क्लियर? समझ में आ रही है? अब उसी के साथ हम लोगों को एक कंसेप्ट लेना है, जहां पे हम लोग बैंड थ्योरी की बात करते हैं। चलो हम लोगों ने क्रिस्टल तो ले लिया, जैसे कि यहाँ पे जब सेमीकंडक्टर की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सिलिकॉन का क्रिस्टल, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, और सिलिकॉन के अंदर में अगर जहां पे इंप्यूरिटी नहीं है तो वो होता है इंट्रिंसिक, और जहां पे इंप्यूरिटी है तो वो होता है एक्सट्रिंसिक। ये इंप्यूरिटी वाले दो एग्जांपल, वन इज द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड द अनदर इज द एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है? बैंड थ्योरी से हमको पता चलता है कि कंडक्टर कौन सा होता है, इंसुलेटर कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। वो कैसे चलता है वो भी देखिए। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d ऑर्बिट भी वहां पे है, बट द 3d ऑर्बिट इज 0. So therefore see that this outermost orbital that become this is the valence shell, valence orbit. अब जब हम लोग यहां पे बैंड थ्योरी की अगर बात करें तो बैंड थ्योरी में क्या बताया जाता है, जैसे कि अगर मैं यहां पे ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, ये हो गया वैलेंस ऑर्बिट। देखिए ये हो गया लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और ये जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वहां पे हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनते जाएगा। So say that this is the one lower energy orbit, ये हम लोगों ने पहला लोअर एनर्जी ऑर्बिट डाला है,
वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा है? दिस इज इंडिकेट्स द 3s लेवल, दिस इज द लोअर एनर्जी। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी दैट विल बी इंक्रीजेस। 3s के बाद में यहां पे दूसरा बैंड होता है ये 3p वाला, ये देखिए ये 3p वाला, दिस इज द 3p, बराबर। ये 3s के बाद 3p दैट विल बी द हायर एनर्जी, और 3p के बाद मैंने यहां पे लिखा है ये देखिए ये दिस इज द 3d, दिस इज द 3d, वेयर दिस इज द हायर एनर्जी लेवल, बराबर है। मैंने तीन अलग अलग एनर्जी लेवल के बैंड्स, ये 3s, ये 3p और ये 3d। अब अगर यहां पे देखें, as these are the 3s orbit as well as the 3p orbit, यहां पे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होने के कारण हम लोग यहां पे बोलते हैं कि दैट दिस इज द वैलेंस शेल। तो दैट दीज बैंड्स दैट इज टू बी फॉर्म दैट इज नोन एज द वैलेंस बैंड, वेयर दीज वैलेंस बॉन्ड बैंड दैट फिल्स द इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में इलेक्ट्रॉन, बराबर है। और ये दोनों बैंड क्या फॉर्म करते हैं? वैलेंस बैंड, जो एनर्जी लेवल कम है। और जो 3d है वो क्या करेगा? एक बैंड फॉर्म करेगा दैट विल बी द कंडक्शन बैंड, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन दैट विल मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बराबर है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही वो एनर्जी हायर एनर्जी पे जाएगा, देन से दैट विल मूव फ्रॉम दिस बैंड टू दिस बैंड, एंड वैलेंस बैंड से वो कहां पे शिफ्ट होगा? कंडक्शन बैंड में। Now electron when it shift to the valence band to the conduction band, ये दो बैंड के बीच में ये गैप है, दिस इज द वन गैप, दिख रही है यहां पे गैप, दिस इज द वन गैप, वेयर दिस अ गैप दैट इज नोन एज द फॉरबिडन गैप। और वो फॉरबिडन गैप कितनी छोटी होती है और कितनी बड़ी होती है, उसके ऊपर उसकी कंडक्टिविटी होती है। करेक्ट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, the totally that is a conductivity that is related how the electron that will shift from the valence band to the conduction band, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कैसे जाता है। वो गैप अगर बहुत ज्यादा अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जाएगा ही नहीं। अगर वो गैप नहीं के बराबर होंगी तो then see that the electron that will move very easily from the valence band to conduction band, then the conductivity that will be increased. क्लियर, समझ में आ रहा है? ये इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये समझने के लिए। देखो अब मैं यहां पे फॉरबिडन गैप की बात करता हूं, ये होगी आपकी फॉरबिडन गैप, ये देखिए फॉरबिडन गैप। अब ये जो गैप होती है वो गैप कितनी कम और कितनी बड़ी होती है, उसके तहत हम लोग यहां पे डिवाइड करेंगे सॉलिड को, कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, कौन सा कंडक्टर होता है, बराबर है, कौन सा इंसुलेटर होता है। चलो, जब ये फॉरबिडन गैप, ये जो गैप होती है, दैट दिस गैप इज वेरी हाई, मानो ये जो गैप बहुत बड़ी अगर होगी तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, कहां पे? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, व्हेन से दैट बिकम्स वेरी हाई। इफ देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मैंने पहले बोला जहां पे कंडक्टिविटी होती है, इट इज वेरी, that is the flow of electron very easily, current flow easily। अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में जाता ही नहीं, अगर वो फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है, इट मींस दैट इट मस्ट बी ए इंसुलेटर। वो क्या होना चाहिए? वो इंसुलेटर ही होना चाहिए। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी नहीं होगी वहां पे, क्यों? तो ये जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज्यादा है, ताकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या होगा? शिफ्ट ही नहीं होगा, तो कहलाता वो इंसुलेटर। क्लियर, दैट इज अ इंसुलेटर। देन सी देयर विल बी नो गैप, फॉरबिडन गैप जो है वो बहुत ही छोटी है, नहीं के बराबर। इफ द गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, इट मींस देयर विल बी नो गैप एट ऑल। अगर ये गैप ही नहीं है तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स तुरंत क्या होंगे? इसके अंदर में मूव होंगे, बराबर है कि नहीं? मूव होंगे कि नहीं? यहां पे गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहां से ये आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएगा,
एंड जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, दैट मीन्स दैट द कंडक्टिविटी दैट विल बी इंक्रीजेस, एंड वो जो सॉलिड होगा दैट विल बी द कंडक्टर, वेयर द फॉरबिडन गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, नहीं के बराबर, नो गैप. If there will be no gap or the gap is very very small, then this is that type of the band, that type of metal is known as the conductor. उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो बैंड थ्योरी के मुताबिक जो फॉरबिडन गैप अगर बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, तो वो होता है कंडक्टर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. बराबर है, ठीक है. यानी इंसुलेटर में क्या होगा, ये फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होगी करके इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां पे शिफ्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब होगा वो इंसुलेटर है. देयर विल बी नो कंडक्टिविटी एट ऑल. करेक्ट. एंड से इफ द फॉरबिडन गैप इज रीजनेबल, वो इतनी है कि वहां से इलेक्ट्रॉन वो जा सकता है. फॉरबिडन गैप अगर बहुत रीजनेबल होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, then say that becomes the semiconductor. उसको कब क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बैंड थ्योरी. ये बैंड थ्योरी के मुताबिक हम लोगों को समझना है कि भाई इंसुलेटर किसको कहा जाता है, कंडक्टर किसको कहा जाता है, और सेमीकंडक्टर किसको कहा जाता है. क्लियर. और ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो हम लोगों ने देखा है, जिसको हम लोगों ने माना है कि दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ग्रांटेड दीज आर द टाइप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग मानते हैं कि दैट दीज आर द इंप्यूरिटीज. इंप्यूरिटी, इसी को डोपिंग प्रोसेस कहा जाता है. मैंने बोला है, द बोरॉन दैट इज टू बी डोप्ड इन सिलिकॉन, phosphorus is doped into the silicon. यहां पे बोरॉन की वैलेंसी 4 नहीं है 3 है करके वो 3 बॉन्ड सिलिकॉन के साथ फॉर्म करेगा, चौथा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो वहां पे एक होल क्रिएट होगा, दैट दिस होल दैट विल बी द पॉजिटिव, क्यों, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा. देन सच टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नोन एज द पी टाइप. और जहां पे फास्फोरस 5 वैलेंसी होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, 4 तो उसने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा होगा, दैट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट विल मूव, दैट विल फ्री टू मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल लैटिस. सो दिस टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर दैट इज नोन एज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है, समझ में आ रही है. Semiconductors. The solids which have conductivities between conductors and insulators ranging from 10 raised to -6 to 10 raised to 4 per ohm meter are called semiconductors. Conduction of electricity in semiconductors. Their conductivity of semiconductors like silicon, germanium, etc. are based on temperature and addition of impurity. In semiconductors, the valence band is almost full, while the conduction band is mostly empty. The forbidden energy gap is quite narrow. Thus, the heat energy available at room temperature is sufficient to excite some of the electrons from the valence band to conduction band, which results in the conduction of electricity to some extent. The conductivity of semiconductors increases with increase in temperature, since more electrons can jump to the conduction band. Now, let us study types of semiconductors and how conduction of electricity takes place in semiconductors. Types of semiconductors. These are 2 types of semiconductors. Intrinsic semiconductors. The semiconductors which can conduct electricity in their pure form are called as intrinsic semiconductors. At room temperature, the conductivity of these semiconductors are quite low. Example: germanium and silicon are intrinsic semiconductors.
The process of adding small amount of impurity to an intrinsic semiconductor is known as doping, and the impurities are called dopants. Extrinsic semiconductors. The semiconductors which are formed by adding impurity to an intrinsic semiconductor are known as extrinsic semiconductors. Example: when germanium is doped with arsenic as impurity, it becomes extrinsic semiconductor. Now, we know what is doping. Let us study how an intrinsic semiconductor can be doped. Doping can be done in two ways: with electron-rich impurity or with electron deficiency impurity, as compared to the intrinsic semiconductor. Electron-rich impurities. Both silicon and germanium belong to the group 14 of the periodic table and have 4 valence electrons each. When silicon is doped with small amount of group 15 elements such as phosphorus, arsenic, its electrical conductivity increases. In pure silicon, each silicon atom uses its 4 valence electrons for the formation of 4 covalent bonds with the neighboring silicon atoms. When silicon is doped with some group 15 elements, then some of the positions in the lattice are substituted by atoms of group 15 element. The group 15 elements have 5 valence electrons. After forming the 4 covalent bonds with silicon, 1 excess electron is left on them. Since this electron is not involved in bonding, it becomes delocalized and contributes to the electrical conduction. Silicon doped with the group 15 elements is called an N-type semiconductor. The increase in conductivity is due to negatively charged electrons. Therefore, semiconductor doped with electron-rich impurity is called N-type semiconductor. Electron-deficient impurities. Electrical conductivity of silicon or germanium can also be increased by doping with group 13 element such as boron, aluminium or gallium. Group 13 elements have only 3 valence electrons. When silicon is doped with some group 13 elements, then some of the positions in the lattice are substituted by atoms of the group 13 element. The group 13 elements have only 3 valence electrons. Thus, they form only 3 covalent bonds with silicon. One of the valence electron of the silicon remains unpaired. This causes an electron vacancy or electron hole in the system. To fill this vacancy, an electron from the neighboring atom jumps into an electron hole, creating an electron hole at its original position. When the electric field is applied, electrons migrate towards the positive electrode by filling the holes, making it appear as if electron holes are migrating towards negative electrode. These holes are responsible for electrical conduction, and the resultant semiconductors are known as P-type semiconductors. Effect of temperature on electrical conductivity. Electrical conductivity of metals decreases with the increase of temperature, whereas the conductivity of semiconductors increases with increase in temperature. Why? In metallic crystal, the electrons are free to move throughout the crystal.
However, the metal ions are fixed in position and can only vibrate. When a metal is heated, the metal ions start vibrating more vigorously, and as a result, motion of the valence electrons through the crystal is hindered. Thus, electrical conductivity of metals decreases with increase in temperature. In semiconductors, the energy gap is very small. A slight increase in temperature or on the application of small voltage, some of the electrons from the valence band jumps to the conduction band and show low conductivity. Substances exhibiting this type of behavior are known as intrinsic semiconductors. Examples: silicon, germanium, etc. The next topic is magnetic properties of the solids. Now see that these are solid. अगर हम लोग metallic solids की अगर बात करें तो that these are metallic solids that shows the property of the magnetism. Magnetic property वहाँ पे होती है. अब magnetic properties की अगर करें तो basically वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होना चाहिए. मैग्नेटिक फोर्सेस लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाना चाहिए. दैट क्रिएट्स द वन मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी आर गेटिंग हियर दैट इज द वेरियस प्रॉपर्टीज, दैट इज द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. बराबर है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड द फेरीमैग्नेटिक. ऐसे 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को डिस्कस करना है. लेकिन ये 5 टाइप के प्रॉपर्टीज में जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है दैट दे आर द डायमैग्नेटिक एज वेल एज द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, so now we are focusing on the diamagnetic as well as the paramagnetic properties. Clear? So first we come on the what is the diamagnetic property. देखिए मैंने एक समराइज चार्ट यहाँ पे बनाया है ताकि हम लोगों को सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सके और कंपेयर करते वक्त हम लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना जाए प्रॉपर्टीज को समझने के लिए. एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर दैट द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अगर वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है सॉलिड के अंदर में तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रिपल्शन होता है. देयर विल बी रिपल्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये क्यों होता है? बिकॉज दैट इज द नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. वहां पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेड होते हैं. एंड दैट्स व्हाई दीज आर पेड इलेक्ट्रॉन्स दैट शोज दैट इज द रिपल्शन बिटवीन देम. इजंट इट? करके हम लोग मानते हैं कि देयर विल बी अ रिपल्शन. मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वहां पे रिपल्शन होगा. There will be no unpaired electron. वहां पे कोई भी unpaired electron नहीं है. All the electrons that are paired electron, and that's why it experiences that is the repulsion. Examples की अगर करें तो सोडियम क्लोराइड, then the titanium oxide TiO2 as the vanadium pentoxide V2O5. All these are the examples of say that diamagnetic solids. Then we come on the paramagnetic solids. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वेयर देयर विल बी अट्रैक्शन. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अट्रैक्शन होता है. अट्रैक्शन क्यों होगा भाई? बिकॉज देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. अगर वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो दैट दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट शोज द पैरामैग्नेटिज्म. क्लियर? और उसी के कारण वहां पे अट्रैक्शन भी होता है. एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, TiO ऑक्साइड्स ऑफ द टिटानियम. ये हो गए उसके एग्जांपल्स. अगर हम लोग यहाँ पे एक बात अगर करें तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात होती है. से दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इनटू n+2. n का मतलब होगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. क्लियर? अब डाइपोल मोमेंट्स की अगर बात हो गई कि कोई भी क्रिस्टल अगर होता है तो दैट इज द क्रिस्टल दैट शो दैट इज द डाइपोल. डाइपोल का मतलब ये होगा कि वो क्रिस्टल के अंदर में छोटे छोटे ऐसे डाइपोल्स बनते हैं, 2 पोल्स. बराबर है. ऐसे पोल्स वहां पे दिखते हैं. दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ द डाइपोल इज देयर इनसाइड द क्रिस्टल. इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बनता है. सो दैट दे आर द डाइपोल. सो एज फार एज द डाइपोल मोमेंट इज देयर, अगर हम लोग यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स की बात करें, इफ यू नो दैट द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन देन इट विल वेरी इजी टू डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट. ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट वन दैट इज द फेरोमैग्नेटिक. अब ये जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो कैसे होता है देखिए.
that these are ferromagnetic behavior. आपको पता है कि हम अगर कोई आयरन नेल जो होता है, किल जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर अगर हम लोगों ने मैग्नेट अगर घुमाया और घुमा के मैग्नेट को छोड़ दिया और फिर बाद में हमने उसको नेल को अगर देखा तो वो नेल के अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, इवन दो व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तब तो मैग्नेटिज्म आता ही है, मैग्नेटिक होता ही है वो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बावजूद भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है. आपने अक्सर देखा ही है. ऐसे जो भी मेटल होते हैं, आयरन मेटल, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द दैट इज द फेरोमैग्नेटिज्म. इसमें क्या होता है, दे इटसेल्फ बिहेव लाइक द मैग्नेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आपने उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हटा दिया, गेटिंग दिस, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो हटा दिया, बट इवन दो व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक द मैग्नेट. वो खुद मैग्नेट सही का काम करता है. एंड दैट्स व्हाई जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, CrO2 हो गया, दैट इट शो दैट इज द सच टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टीज दे आर नोन एज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. क्लियर? देन वी कम ऑन द एंटी फेरोमैग्नेटिक. यहां पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात अगर करें तो दैट्स सी मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द ऑफ द फेरोमैग्नेटिक इज द मैक्सिमम. म्यू की वैल्यू जो होती है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो डिटरमाइन करते हैं, दैट वी आर गेटिंग हियर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. गेटिंग दिस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो दिस इज द मैक्सिमम. देन एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है भाई, देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक में जो डाइपोल होता है वो डाइपोल इस तरीके से अरेंज होता है, एक ये डायरेक्शन से होगा तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन से होगा. देखिए ये डाइपोल है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, इस तरीके से वहां पे अरेंजमेंट होता है. क्रिस्टल में जो डाइपोल होगा वो इस तरीके से होगा एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी अ स्ट्रांग रिपल्शन. वहां पे क्या होगा, स्ट्रांग रिपल्शन होगा, बराबर है. अब वहां पे इस तरीके का डाइपोल मोमेंट डाइपोल अरेंज होता है और उसके कारण वहां पे एग्जांपल की अगर बात अगर करें तो दैट वी आर टेकिंग Fe2O3 MnO. आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए है वो एग्जांपल्स के ऊपर आप लोगों को भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दे जनरली दे आस्क द क्वेश्चंस ऑन द एग्जांपल्स कि इसमें कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बराबर है. तो उसके कारण आपको ये एग्जांपल्स Fe2O3 MnO MnO2 Mn2O, बराबर है, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है, दैट सी दैट व्हाटएवर द डाइपोल मोमेंट इज देयर, दैट दीज आर डाइपोल मोमेंट, बराबर. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की अगर बात अगर करें, जो म्यू की वैल्यू की अगर बात अगर होती है तो दैट वी आर गेटिंग द म्यू इक्वल्स टू 0 हियर. क्लियर, समझ में आ रही है? सो इन दिस अनदर द फेरीमैग्नेटिक, अगर हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल को अगर देखें तो दैट दिस इट इज द अनइक्वल डाइपोल अरेंजमेंट. वहां पे कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं है. आप अगर देखें तो यहाँ पे इस तरीके से एरो ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, अरे कहीं पे भी वो सिमिलर पैटर्न नहीं बताता. दैट देयर विल बी अ डाइपोल अरेंजमेंट. कैसा है वहां पे, अनइक्वल डाइपोल अरेंजमेंट है. सो अनइक्वल डाइपोल अरेंजमेंट होने के कारण वहां पे वैल्यू जो होती है डाइपोल मोमेंट की, दैट विल नॉट इक्वल्स टू 0. अगर 0 नहीं होती है तो देखिए दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द म्यू फेरी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फेरो. फेरी इज लेस देन फेरो इक्वल्स टू लेस देन, बराबर है. यहां पे अगर हम लोग अगर बात अगर करें तो फेरी एंड फेरो में जैसे कि मैंने बोला कि दैट इट विल नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर वी गेट दिस टाइप. इसकी वैल्यू इस तरीके से कम होती है फेरी और फेरो के बीच में. एंड सी दैट द एग्जांपल इज द Fe3O4, जो हम लोग यहाँ पे फाइराइट की बात करते हैं, दैट Fe3O4 इज द एग्जांपल that gives that is the such type of the magnetic property, that is the ferrimagnetic property, correct. So this is all about the magnetic properties of the solid. Clear, इतना समझ में आया आपको? So this is a very very important and this is the end of this topic, solid state. Clear.